Hello everyone, welcome to Edudim IAS. So guys, again we are continuing this 10-minute series, and in this particular class we are going to cover a topic which is very important from the prelims point of view because many questions been asked from this particular topic, and the topic name is money. So today we are going to cover the money part, and then we will look into the monetary policy. Now let me just show you the whole chart through which we are going to study. Now if you just analyze this particular chart, you will find that there are several things which has been there. So very first thing we are going to discuss about the definition, but before this we need to understand about the evolution, that how the money has evolved. Then we are going to see about the classification of the money and the legal tender status. Then we will discuss about the measure of money supply. Money supply is basically the total stock of money in circulation, so that we are going to discuss, and then we will see some associated important topics from the prelims point of view. So let's start very first thing from the evolution. Now if you just look towards this very first thing, that is barter system. So initially we have this barter system, and the idea behind this barter system is that suppose if there are two things, that is, suppose this is one person A, this is another person V, and suppose this person has, let's say, wheat, and this person, let's say that he has cow. Now barter system simply says that there is a exchange of good without the mediation of money. Means यहाँ पे money नहीं होगा, बस goods का exchange हो जाएगा. That means wheat will be given to, that this A is going to give the wheat and B is going to give the cow. So this way this transaction is going to happen. Now the major problem with this particular system is that there is a very much issue of double coincidence of wants. Now what do we mean by that? दैट मीन्स कि ए को जो चीज़ चाहिए वो बी के पास होनी चाहिए, और बी को जो चीज़ चाहिए वो ए के पास होनी चाहिए, तभी ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा. और इसके वजह से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आती है, दैट इज़ वेरी हाई सर्च कॉस्ट एंड टाइम कॉस्ट. मतलब आपको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास आपकी चीज़ हो और उसको भी आपकी चीज़ चाहिए हो. अनदर मेजर प्रॉब्लम इज़ दैट नो यूनिट ऑफ अकाउंट. अब आप सोच के देखिए कि ये इंसान एक काव को कितने केजीज वीट में एक्सचेंज करेगा, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट या यूनिट ऑफ अकाउंट हमारे पास नहीं है. दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. अनदर प्रॉब्लम इज़ नो स्टोर ऑफ वैल्यू. मीन्स ये दोनों ही लोग लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ को स्टोर करके नहीं रख सकते. ठीक है, दैट इज़ अनदर मेजर प्रॉब्लम. एंड अनदर वेरी मेजर प्रॉब्लम इज़ दैट देयर इज़ नो, I would say that there is no unit of account also, because see, अगर सपोज कीजिए इसके पास सिर्फ 5 kg ही वीट है, देन हाउ मच काव ही वुड गेट. अब देखिए काव को कोई इंसान आधे में नहीं काट सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, सो दैट मीन्स दैट दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट गोइंग टू हैपन. नाउ ड्यू टू ऑल दीज इश्यूज वी केम अप विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, एंड दिस मनी हैज़ बीन इवॉल्व्ड. सो अगेन कमिंग बैक टू इट, सो वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ मनी दैट वी हैव इज़ द कॉमोडिटी मनी. अब देखिए कॉमोडिटी मनी क्या है बेसिकली, कि हम लोग किसी भी कॉमोडिटी को लेंगे और उसको एक मनी का दर्जा दे देंगे. अब देखिए पहले के टाइम पे वी हैव सीन दैट इन अफ्रीका वी यूज कोको बीन्स. ठीक है, पीपल यूज टू यूज कोको बीन्स. इन ऑस्ट्रेलियन पार्ट दे यूज टू हैव दैट वेल्स टीथ विच एक्ट एज अ मनी. अब देखिए मनी क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं. सी, to solve this double coincidence of want, we have this money. So money is anything which makes the transaction to happen, and this act as a medium of exchange. ठीक है, अब सपोज कीजिए कि वही सेम ग्राफ पे अगर हम लोग वापस जाते हैं, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास wheat है, here we have cow. Now suppose this transaction could not happen because of several issues which we have discussed, but suppose अगर मैं यहाँ पे बीच में money को enter करवा दूँ, then this is going to act as a medium of exchange. So this transaction is going to happen because this money is going to provide several functions. The very first function, that this will act as a unit of account. यूनिट ऑफ अकाउंट, दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू. मतलब वीट का क्या रेट है ये हमें पता है, काव का क्या रेट है हमें पता है, और हम मनी की हेल्प से उस ट्रांजेक्शन को कंडक्ट कर लेंगे. क्लियर. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और यूनिट ऑफ अकाउंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई. नाउ दिस यूनिट ऑफ अकाउंट बेसिकली प्रोवाइड्स टू बेसिक, I would say, the functions or features of to this money, that is it is divisible and fungible. यानी कि डिविजिबल का मतलब है कि मैं वीट, सपोज कीजिए अगर इस वीट का रेट लेट से 67 रुपीज़ है, राइट, तो आई कैन ईजिली पे 67 विद द हेल्प ऑफ मनी, बिकॉज मेरे पास वो यूनिट ऑफ अकाउंट है.
So I'm going to give 50 rupees, 10 rupees, 5 plus 2. Okay, so this way this transaction is going to happen. एंड अनदर थिंग इज़ फंजिबल, दैट मीन्स मेरे पास जो मनी है वो उसकी वैल्यू सेम है जो आपके पास मनी है. क्लियर? सो दीज टू फीचर्स इज गोइंग टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज यूनिट ऑफ अकाउंट. अनदर फंक्शन दैट वी हैव इज दी दैट मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू. ठीक है, सेम चीज़ है वही, स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि आप फ्यूचर डेट के लिए अपने पैसे को रिजर्व करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके पास पेरिशेबल गुड्स नहीं है. ठीक है, मनी पेरिशेबल नेचर की नहीं होती है. नेक्स्ट वी हैव इज द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. दैट मीन्स कि आप अपने फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स को रुपीज़ की फॉर्म में या मनी की फॉर्म में सेटल कर सकते हैं. क्लियर? सो दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. So this way this money has evolved from the barter to the commodity, and then we have this metallic money. अब देखिए metallic money को भी commodity money ही कहा जाएगा, but the only thing is that now they have the intrinsic value. Intrinsic value. अब देखिए यहाँ पे देखिए, so commodity money is having the intrinsic value. Let's say gold coin. अगर suppose कीजिए हम gold coin को use कर रहे हैं as a money, so it's going to have the intrinsic value. अब देखिए अगर let's say that if the intrinsic value is more than the face value. देखिए face value क्या होती है, यानी कि इस कॉइन के ऊपर लेट्स से ये गोल्ड कॉइन है और इस कॉइन के ऊपर लेट्स से द प्राइस इज बीन देयर, मान लेते हैं 9,000 रुपीज़, राइट. और इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, आज गोल्ड का रेट क्या है अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट 15K, दैट इज़ 15,000. तो यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा है फेस वैल्यू से. तो यहाँ इस तरीके के कॉइन्स को हम लोग बोलते हैं फुल बॉडीड कॉइन, और इनके साथ बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है. बिकॉज आप सपोज कीजिए मेरे पास अगर एक गोल्ड कॉइन होगा तो मैं उसको लेट से मेल्ट करके उसको किसी और ज्वेलरी की फॉर्म में सेल आउट करूँगा, बिकॉज मुझे उसके 15,000 मिलेंगे, रादर उसकी फेस वैल्यू क्या है 9,000 रुपीज़. सो दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. सो दैट्स वाई द गवर्नमेंट यूज टू हैव द डिबेसमेंट ऑफ द कॉइन, दैट मीन्स टू रिड्यूस द मेटल इन द कॉइन. जैसे कि आपने 5 रुपीज़ के कॉइन में प्रीवियसली देखा होगा, वी हैव दैट सैंडविच type of coin. Now we have that malnourished coin that we are going to use today. Clear? Next we have is the paper money. So paper money is also called fiat money. अब देखिए fiat money कहलाने के लिए किसी भी पेपर मनी को क्या चाहिए, regulated by the government and backing by the government. That means क्योंकि देखिए पेपर मनी की कोई वैल्यू नहीं होती, there is no value, there is no intrinsic value in that. सो इट इज़ बीन बैक्ड बाय द गवर्नमेंट प्रॉमिस. जैसे कि आपने आरबीआई गवर्नर का एक साइन और एक नोट आपने किसी भी करेंसी नोट में हमारे देखा होगा, दैट आई प्रॉमिस द बेयरर टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ मनी. ओके, सो दैट इज़ नथिंग बट द बैकिंग बाय द गवर्नमेंट. सो दैट मनी इज कॉल्ड फिएट मनी. नेक्स्ट वी हैव इज द बैंक और क्रेडिट और चेक ड्राफ्ट, दैट इज़ वॉट वी कॉल्ड फिड्यूशरी मनी एक्चुअली. देखिए जब भी हम लोग चेक्स देते हैं, सपोज कीजिए आपने किसी भी आप लेट से कम आई वुड से किसी भी स्टोर पे जाएंगे आप, तो आप देखेंगे वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है दैट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दी चेक्स बिकॉज दे डज नॉट ट्रस्ट देयर कस्टमर, बिकॉज दे थिंक कि हो सकता है कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाए. इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो नाउ सपोज इफ लेट्स से यू एंड मी आर कंडक्टिंग एनी ट्रांजेक्शन और उसके लिए आप मुझे चेक दे रहे हैं बिकॉज आई ट्रस्टेड यू, right? So trust is the basis of this kind of money, that is called fiduciary money. Clear? Next we have is the plastic money. So plastic money such as debit card, credit card, right? Credit card, all these are what we call the plastic money. Next we have is the digital or cryptocurrency. So digital is UPI, CBDC यानी कि cryptocurrency, central bank digital currency that we have, or e-rupees also what we called. So this is how the money has evolved over a period of time. नेक्स्ट वी हैव इज़ द लीगल टेंडर. अब देखिए अगर आप आरबीआई एक्ट को देखेंगे 1934, वहाँ पर आपको बैंक नोट की डेफिनेशन मिलेगी, और बैंक नोट की डेफिनेशन के नीचे ही आपको मिलेगा लीगल टेंडर. तो दैट सेज दैट एवरी बैंक नोट इज़ अ लीगल टेंडर. तो बैंक नोट का जो भी डिनोमिनेशन है दैट इज मेंशन्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द बैंक नोट, एंड another clause says that the all bank notes are legal tender. Clear? So this is how the government backing has been provided through a statutory measure such in the RBI Act 1934. Now there are two kind of legal tenders that we have, that is the limited legal tender and unlimited legal tender. अब देखिए अगर आप कोई भी सपोज कीजिए 1 लाख या 2 लाख का अमाउंट या 10 लाख का अमाउंट अगर आप कॉइन की फॉर्म में मुझे पे करेंगे, देन आई कैन रिफ्यूज़. सो दैट इज़ वाई वी से दैट कॉइन्स हैव द लिमिटेड लीगल टेंडर, राइट? आई कैन रिफ्यूज़, और आप मुझे उसके लिए कोर्ट में नहीं घसीट सकते. दैट इज़ वॉट वी मीन बाय द लिमिटेड लीगल टेंडर. ऑन द अदर हैंड वी हैव अनलिमिटेड लीगल टेंडर. सो इफ़ योर मनी इज़
white money, I would say, and it's very much under the authorized by the government or under the authority of the income tax, then you can pay any amount to me in the currency note and I should not refuse it. That is why it is called unlimited legal tender. Chaliye, next we have is the measure of money supply. As I told you that money supply is nothing but the total stock of money in circulation. Okay, so money is of basically this money supply is basically involves two things. First one is the currency and another one is the demand deposit, right? Currency and demand deposit. Now in this we have different kind of money supply components which is in front of you from M0 to M4. So we will just going to discuss about it. So very first thing we have is the M0. So M0 is what we call reserve money, right? So reserve money is, the formula is in front of you, that is currency plus bankers deposit and plus our other RBI deposit, right? So this is what we call base for credit. Okay, base for credit, and we also called it रिजर्व मनी. ठीक है, रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी, इसको हम हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं. ठीक है, दैट इज M0. अब ये हमारा बेस है कि यानी कि कितना क्रेडिट यानी कि हमारे अभी इस टाइम पे सर्कुलेशन में है. नेक्स्ट वी हैव इज द M1. सो M1 एंड M2 बोथ आर कॉल्ड नैरो मनी. इन दोनों को भी हम लोग नैरो मनी भी बोलते हैं. सो M1 इज इक्वल्स टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस RBI other deposit, and this one is most liquid. नेक्स्ट वी हैव इज M2. अब देखिए, अभी हमने M1 में जितना भी चीज़ें ली हैं उसके साथ साथ हम लोग अब पोस्ट ऑफिस सेविंग्स भी लेंगे. अब आप बोलेंगे सर कि पोस्ट ऑफिस सेविंग और डिमांड डिपॉजिट में फ़र्क क्या है? द डिफरेंस इज दैट इन द डिमांड डिपॉजिट यू कैन इशू द चेक्स. अगर आपके बैंक में कोई पैसा पड़ा हुआ है तो आप उसके अगेंस्ट एक चेक इशू करेंगे एंड यू कैन यूज़ इट. बट इन केस ऑफ पोस्ट ऑफिस देयर इज़ नो इशूएंस ऑफ चेक, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में अगर आपका अकाउंट है तो आपको कोई चेक बुक नहीं मिलती है. दैट्स वाई वी ट्रीट इट डिफरेंटली. सो वी हैव पोस्ट ऑफिस सेविंग. नेक्स्ट वी हैव M3 विच इज कॉल्ड ब्रॉड मनी. सो M3 एंड M4 बोथ आर कॉल्ड ब्रॉड मनी. सो M3 इज कस टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, राइट? मोस्ट कॉमन मेजर टाइम डिपॉजिट क्या होता है? जैसे कि FD. ठीक है, सो दैट वॉज लेफ्ट आउट, सो FDs हमने यहाँ पे इंक्लूड कर ली. Next we have is M4, which is the very broad or most broad in all the terms. So M3 plus all post office deposit, and this one is least liquid. तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पूरा आपको ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे नीचे वाला जो है that is most liquid, then we are going above, it is least liquid. So M4 is least liquid, rest M0 is the most liquid. अगर मैं आपसे बोलूँ कि अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था about the function of the money, so here you can see that here at this part, that is M0, or I would say let's say M1 also, the money is acting as a medium of exchange. While on the other hand if you move towards the M4 part, आपको ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे M4 में जो भी दिखेंगी वो बहुत हद तक सेविंग वाला कंपोनेंट ज़्यादा दिखेगा. सो दिस M4 एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू. सो नाउ मनी का जो फंक्शन है वो M0 या M1 से लेके जब हम लोग M4 तक जा रहे हैं तो वो एक फंक्शन चेंज हो रहा है. So here we have this M0 or M1, which where the money is acting as a medium of exchange, and when we are going to M4, the money is acting as a store of value. चलिए, so let's move on to the last concept, some basic concepts related to the prelims. So here you can see very first thing we have is the hard money. अब देखिए हार्ड मनी क्या होती है, जो कि ग्लोबली सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड करेंसी होती है, जैसे कि हमारा डॉलर. अब डॉलर को हम लोग हार्ड करेंसी क्यों बोलेंगे? इवन आई वुड से यूरो ऑल्सो समवॉट. ठीक है, यूरो इज ऑल्सो हार्ड करेंसी. Now the reason behind it that this is least fluctuating, या मैं बोलूँगा मोस्ट स्टेबल मनी. ठीक है, मोस्ट स्टेबल, बेटर टर्म वुड बी मोस्ट स्टेबल. ठीक है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग डॉलर एज अ ग्लोबल करेंसी. क्लियर? ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग सॉफ्ट मनी की बात करेंगे, दिस पर्टिकुलर करेंसी इज़ वेरी वॉलेटाइल. ठीक है, अभी के हालात को देखते हुए आप INR बोल सकते हैं, बिकॉज द मनी आर करेंसी दैट इज़ रुपी इज़ depreciating डे आफ्टर डे. But on the other hand, I would like to take the name of, let's say, Pakistani rupee or Zimbabwe currency. So you would see that these currencies are very much volatile. That's why they are called soft money, and they cannot be used globally in the global transactions. Because इनका suppose कीजिए कि मेरे पास अगर आज कोई मैंने ट्रांजेक्शन कंडक्ट किया है, मेरे पास let's say 1 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये अगर मेरे पास आता है, then on the other day its value could be zero, right? वो कंट्री कभी भी बैंक करप्ट हो सकता है. सो
That is what we called soft money. नेक्स्ट वी हैव इज़ दी हॉट मनी. अब देखिए हॉट मनी का क्या मतलब होता है, वो मनी जो कि बेसिकली बहुत हॉट है, मतलब बहुत क्विकली फ्लाई ऑफ हो जाता है. उसको हम कैटेगराइज करते हैं FII के अंदर, दैट इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. अब अगर सपोज कीजिए कि अगर कोई भी बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है और वो हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है जस्ट टू गेट अ क्विक गेन, उसको बस जल्दी से पैसा कमाना है, 2-4 दिन 10 दिन में उसको स्टॉक मार्केट का जो एक ट्रेंड है उसको एनालाइज करके पैसा कमाना है और बस यहाँ से चले जाना है. क्लियर. सो दिस काइंड ऑफ मनी इज़ व्हाट वी कॉल्ड हॉट मनी. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव इज द चीप मनी एंड डियरर मनी. अब ये कंसेप्ट दो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ. चीप मनी इज़ वन विच इज़ वेरी ईजिली अवेलेबल, लो इन इंटरेस्ट, और ड्यूरिंग रिसेशन में ये इस टाइप की मनी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. अगर सपोज़ कीजिए कि इंडिया में रिसेशन आता है और जो हमारी RBI है वो उसको इंटरेस्ट रेट को और नीचे और एकदम लेट्स से 2-3% पे आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट काइंड ऑफ मनी इज़ व्हाट वी कॉल चीप मनी. ऑन द अदर हैंड वी हैव डियरर मनी. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन RBI क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है सो दैट लोगों को लोन लेने में डिफिकल्टी आए, because the reason behind it, they wanted to control the money supply, which is a major cause of inflation. So for that purpose, that kind of money is what we call dearer money. Clear. चलिए, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दी मनी मल्टीप्लायर. इसके ऊपर प्रीवियसली एक क्वेश्चन भी आ चुका है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू उसके बारे में दे देता हूँ. सो बेसिकली सपोज कीजिए दैट लेट्स से आई हैव 100 रुपीज़. आई गो टू बैंक, आई पुट माई मनी 100. अब सपोज कीजिए कि हमारे पास जो बैंकिंग सिस्टम है वो है क्या है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम. दैट मीन्स कि बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ अमाउंट रिजर्व की फॉर्म में रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ यू नो दैट रिजर्व रिक्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं. और ये रिजर्व रिक्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है, द CRR एंड SLR. राइट. अब सपोज कीजिए मैं एक मोटा मोटी हिसाब ले लेता हूँ. लेट्स से दैट रिजर्व रिक्वायरमेंट इज 20%. तो अभी क्या होगा, 20 रुपीज़ कहाँ जाएगा इस 100 में से, टू द रिजर्व्स, एंड रिमेनिंग 80 कहाँ जाएगा, बैंक्स के पास रहेगा. सो दिस मनी अगेन बैंक्स कैन लैंड. ठीक है. लेट से उन्होंने किसी और इंसान को ये पैसा दिया 80 रुपये, उसने वापस से ले जाके 80 रुपये को बैंक के अंदर रखा. ठीक है. अगेन बैंक ने लेट से 16 रुपीज़ कहाँ गया, रिजर्व रिक्वायरमेंट में, एंड रिमेनिंग 64 अगेन बैंक के पास है, एंड अगेन दिस कुड बी लैंड टू समबडी लेट्स से C. तो इस तरीके से सेम मनी को बैंक क्या करेगा, बार बार उसको यूज़ करता रहेगा जब तक कि वो पूरा पैसा ख़त्म ना हो जाए. अब इस केस में आप देखेंगे कि हमने क्या किया, हमने 100 रुपये को ही बार बार यूज़ करके मल्टीपल टाइम्स उसको लैंड कर दिया. दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन. क्रेडिट क्रिएशन. और इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1 रिजर्व रिक्वायरमेंट. अब सपोज कीजिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो वी हैव दिस 20% रिजर्व रिक्वायरमेंट. सो 1 फॉर द परसेंटेज टर्म्स आई एम गोइंग टू टेक दी 0.2. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 मेरा वैल्यू आएगा ऑफ मनी मल्टीप्लायर. दैट मीन्स दैट माई मनी आउट ऑफ दिस 100 रुपीज़ आई कैन जनरेट द वैल्यू ऑफ 500. राइट. सो 5x, that is 5 times I am going to create the money with the same amount. That is what we call money multiplier. Clear. So that is one of the formula. Another formula is in front of you. Here we have, that is M3 upon M0. That is another formula of this money multiplier. I hope that all the concepts related to money, at least in this image, I am able to clear your doubts. So if you have any doubt, just go to the comment section and give me the doubt, and I will surely going to reply about or on going to solve your issues or problems. Okay, so thank you guys. So see you in the next class.